Hello students, welcome back to the channel. So in this video we'll be talking about the consequences of the lengthenoid contraction. So in the previous video we studied about what is lengthenoid contraction. ठीक है, I hope कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब देखो consequences क्या है lengthenoid contraction के. ठीक है, this can also be your question of reasoning. Fine. Then first जो है that is similarity in the sizes of the second and third transition series. अब second और third transition series में सिमिलैरिटी कैसे आती है. सो अगेन यू सी द periodic टेबल फर्स्ट. सी अब ट्रांजिशन सीरीज का इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. अब जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके जो 57 से 57 और 72 है, तो 58 से 71 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके ये लेंथेनॉइड्स हैं. ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया अल्टीमेटली, तो उनका इम्पैक्ट जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इम्पैक्ट जो है वो आगे वाले एलिमेंट्स पे पड़ेगा. वाई? क्योंकि यहाँ से 58 से 71 की अगर हम बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4f में फिल हो चुके हैं. सो विद दिस द 14 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज दैट has also been increased. So because and very poor shielding effect of 4f, and due to increase in the nuclear charge by 14 units, the sizes of the rest of the you can say this series, first थर्ड सीरीज के साइजेस जो है वो स्मॉल हो जाते हैं. ठीक है, अब देखा जाए तो अगर हम ग्रुप में मूव करें, आप ये वाला ले लीजिए, टाइटेनियम है, जर्कोनियम है और हैफनियम है. तो इनके जो साइजेस जो हैं वो टाइटेनियम से जर्कोनियम तक आते हैं. द साइज विल इंक्रीज, द सेम शुड बी देयर कि हैफनियम का साइज़ जो है वो जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. दे विल बी हैविंग द कंपेरेबल साइजेस. ठीक है, अल्टीमेटली सेकेंड सीरीज को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके इम्पैक्ट से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इम्पैक्ट से, ड्यू टू फिलिंग ऑफ द 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड पुअर शील्डिंग द एंड due to because of this 14 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज हैज़ बीन इंक्रीज्ड. जब हम F4F पे पहुंचेंगे, सॉरी नॉट 4f, हैफनियम पे पहुंचेंगे. ठीक है, तो इसके बाद जो है वो साइज, जो इनके साइजेस भी हैं, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो इनके साइजेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, इनके साइजेस डिक्रीज हो गए तो अल्टीमेटली जो यहाँ से यहाँ तक आते हुए बढ़ना चाहिए था वो इसके कंपेरेबल हो गया. अब अगर मैं आपको जर्कोनियम और हैफनियम का साइज बताऊँ, हियर आई हैव मेंशन, सी द चलिए पहले देखते हैं लिखा क्या है. द साइज ऑफ एनी एटम इन द third transition series after lanthanum that is nearly same as that of the atom of the element lying in the same group of the second transition, as I explained to you from the periodic table. So see the identical radii of zirconium 160 picometer and hafnium का है 159 picometer. See, so they are almost comparable. ठीक है, so a consequence of lengthened contraction account for their occurrence together in the nature and for the difficult you can say there is a difficulty which is faced in their separation. So in nature also, as their sizes, and you know that chemical properties, they depend upon their sizes, how what will be the ionization energy, how the how you can say they react with each other, many of the chemical reactions. ठीक है, so they get affected. So if the sizes are same, ठीक है, ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, एंड इफ द केमिकल प्रॉपर्टीज और यू कैन से आयनिक चार्जेस जो हैं दे विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर. सो देर विल बी इन द नेचर ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल यही डिस्कस कर रहे थे कि नेचर में जो है दैट इज़ अ रीज़न for their occurrence together. Now if in nature they are occurring together and we want to separate, and there will be difficulty in the separation of the lanthanoids. ठीक है, and similar, or you can say similar chemical properties. Since the change in the ionic radii in the lanthanoid series is very small, their chemical properties are similar, thus it is very difficult to separate these elements in the pure state. Fine. Then come to the basic strength of oxides. Now see, as the size of the lanthanide ion decreases from cerium to lutetium, अब साइज डिक्रीज हो गया. साइज डिक्रीज होने से क्या हुआ, कोवलेंट करेक्टर ऑफ
M for any general metal, this bond that gets increased. You remember Fazan's rule, ठीक है? So that gets increased. Now the covalent character increases, hence the basic strength decreases. अब basic strength तो इसी से ही हम measure करेंगे ना, how easily OH negative ions they are separated from the metal और एनी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है. और जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा उतना इजीली सेपरेशन होगा. अब क्या है, इस बॉन्ड में साइजेस डिक्रीज होने की वजह से कोवलेंट करेक्टर आ गया ज़्यादा. अब ज़्यादा एज द कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज. सो दिस इज द रीज़न दैट यू कैन से दिस सीरियम हाइड्रोक्साइड दे आर मोर बेसिक while lutetium hydroxide is the least basic. Can be the question, ठीक है. दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लीस्ट बेसिक, वाई, ठीक है. सो ऑल दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.